بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کبھی کبھار ایسے زخم دیتی ہے جو نہ صرف جسم پر بلکہ روح پر لگتے ہیں، اور انہی زخموں میں ایک ایسا زخم بھی میری قسمت نے مجھے دے دیا تھا جو وقت گزرنے کے باوجود بھی میرے وجود میں تازہ تھا، ایسا گہرا، ایسا کچل دینے والا کہ ابھی تک مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے جو شاید کسی خوفناک خواب سے کم نہیں، جیسے میں اپنی کہانی کا کردار نہ ہوں بلکہ کسی اور کی لکھی ہوئی تحریر کا ایک مجبور سا جملہ ہوں جس پر کسی کا اختیار نہیں۔ اس رات جب میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، جب میرے قدموں کے نیچے زمین سلگ رہی تھی اور میں اپنے پیچھے لگی ہوئی کسی انجانی بلا سے جان بچاتی بھاگ رہی تھی، میں صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ کاش کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں محفوظ ہو سکوں، جہاں مجھے سکون کا ایک لمحہ نصیب ہو جائے، جہاں میں خود کو سنبھال سکوں، خود سے بات کر سکوں اور اپنے اندر گونجتی چیخوں کو خاموش کر سکوں۔ شدید پیاس سے میرا حلق جیسے سوکھ کر کانٹے دار جھاڑی بن چکا تھا، زبان تالو سے چپکنے لگی تھی اور آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ اگر مجھے تھوڑی دیر اور پانی نہ ملتا تو شاید میں بے ہوش ہو کر گر جاتی، اور شاید کوئی مجھے وہیں پڑا چھوڑ دیتا، ایک اجنبی لڑکی جس کے چہرے پر خوف، تھکن اور بھوک کے نشانات تھے۔ لیکن پھر جیسے میری نظر سامنے پڑی، میں نے سفید رنگ کی ایک عمارت دیکھی جو چاندنی رات میں کسی نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ وہ ایک مسجد تھی، اتنی پرسکون اور پاکیزہ لگ رہی تھی جیسے میرے درد کا مداوا اس کے اندر چھپا ہو۔ اس کا گنبد چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے در و دیوار جیسے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے، پکار رہے تھے کہ آ جاؤ، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میرے قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگے جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے کہ رب کا گھر مجھے اس لمحے نظر آیا جب مجھے سب سے زیادہ رب کی ضرورت تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مسجد میں اب کوئی نمازی موجود نہ ہوگا، سارے لوگ اپنی نمازیں پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہوں گے اور مسجد خاموش ہو چکی ہوگی۔ یہی سوچ کر میرے قدم مزید مضبوط ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے کسی انسان سے نہیں، انسانوں کے سائے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مسجد تو ویسے بھی خدا کا گھر ہوتا ہے، یہاں کوئی برا انسان نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ایسی نظریں جو میرے وجود کو گھور کر میری کہانی کو جاننے کی کوشش کریں گی۔ یہاں صرف خاموشی ہوگی، پاکیزگی ہوگی اور شاید ایک چھوٹا سا سکون جو میرے بکھرتے وجود کو سمیٹنے میں مدد کرے گا۔ میں نے اپنے کالے دوپٹے سے چہرہ چھپایا جیسے اپنے درد اور اپنی سچائی کو دنیا سے چھپا رہی ہوں، اور آہستگی سے مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ مسجد میں مکمل خاموشی تھی، سوائے اس ہلکی ہلکی خوشبو کے جو شاید کسی نے عطر لگا کر نماز کے لیے چھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ نل کے پاس گئی اور وہاں سے ٹھنڈا شفاف پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر پیا۔ وہ پانی جیسے میرے اندر زندگی واپس لے آیا ہو۔ میری رگوں میں بہتا ہوا وہ پانی میرے جسم کو پرسکون کر رہا تھا، میرے ذہن کی دھند کو صاف کر رہا تھا اور میری سوچنے کی صلاحیت واپس آ رہی تھی۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ میں مرنے کے قریب تھی، لیکن اس پانی نے مجھے بچا لیا، جیسے خود میرے رب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مسجد میں دری بچھی ہوئی تھی، روشنی بہت مدھم سی تھی، جیسے نیند خود اس جگہ پر ڈیری ڈالے بیٹھی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ دیر یہاں رک جاتی ہوں، تھوڑا سا سکون حاصل کر لوں، اور پھر اگر ہمت ہوئی تو صبح ہونے سے پہلے کہیں اور نکل جاؤں گی، لیکن فی الحال تو یہی میری واحد پناہ گاہ تھی۔ میں آہستہ آہستہ مسجد کے اندر چلی آئی اور ایک کونے میں دری پر بیٹھ گئی۔ میری ہڈیاں تھکن سے چور تھیں، جسم جیسے بوجھ بن چکا تھا اور دل جیسے مسلسل کسی خوفناک یاد کو دہرا رہا ہو۔ مسجد کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو تھی، نہایت لطیف، ایسی جو دل کو چھو جائے اور روح کو شفا دے۔ وہ خوشبو میرے لیے نئی نہ تھی، شاید بچپن میں کبھی اماں کے ساتھ مسجد گئی تھی اور وہی خوشبو میرے اندر محفوظ رہ گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد نیچے لیٹ گئی۔ میرے آنسو بہنے لگے، شاید اتنے خاموش کہ کوئی سن نہ سکتا، لیکن میرے رب ضرور سن رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن میری زبان استغفار میں مصروف تھی۔ میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، یا اللہ معاف کر دے، میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، بہت بڑی۔ میں نے وہ قدم اٹھایا جو نہ اٹھانا چاہیے تھا، اور اب میں اس کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔
میں نے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا اور آنکھیں بند کر کے دل سے رو پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی، ان کے چہروں کو، ان کی باتوں کو، ان کی محبتوں کو۔ کیا انہیں میری حالت کا علم ہے؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا شاید انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہو؟ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے سوچے سمجھے بغیر ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے میری دنیا کو جہنم بنا دیا؟ اس وقت میں بس رب کے حضور تھی، اس کے در پر پڑی تھی، اپنی ساری خودی، سارا غرور، ساری غلطیاں، سب گناہ اس کے آگے رکھ چکی تھی۔ میں نے رو رو کر اس سے معافیاں مانگی، اس سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو مجھے کوئی راستہ بھی دکھا دے۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت سے دعا کی، میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، میں بس تھک گئی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، ایک نیا آغاز چاہتی ہوں، میری غلطیوں کو مٹا دے، مجھے دوبارہ اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے۔ اور پھر میں وہیں لیٹی رہی، مسجد کی ٹھنڈی زمین پر، اپنے آنسوں کے ساتھ، اپنی ٹوٹی امیدوں اور لرزتے دل کے ساتھ۔ تبھی اچانک مسجد کی خاموش فضا میں مجھے ایک عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ آواز نہ تو معمولی تھی اور نہ ہی عام انسانی موجودگی جیسی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہلکے قدموں سے دری پر چلتے ہوئے کوئی حرکت کی ہو، یا جیسے ہوا کا کوئی جھونکا اندر آیا ہو اور مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کر میرے کانوں تک پہنچا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگی اور دل کی دھڑکن جیسے سینے کو پھاڑنے لگی ہو۔ میں فوراً چونکی، میری آنکھیں خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھا۔ میرے ہوش ایک لمحے میں ہی اڑ گئے جب میں نے دیکھا کہ عین میرے سامنے مسجد کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، ایک ایسا نوجوان جس کی موجودگی نہ صرف حیران کن تھی بلکہ ناقابل فہم بھی۔ وہ کب آیا، کیسے آیا، میں کیسے نہ دیکھ سکی، اور وہ اس ممبر پر کیسے براجمان ہو گیا؟ یہ سب سوال ایک ساتھ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ میرا ان سوالوں سے بڑھ کر جو بات مجھے حیرت میں ڈال گئی وہ اس نوجوان کا چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ سفید، نورانی اور اتنا خوبصورت تھا کہ میری زندگی میں، خوابوں میں، کہانیوں میں یا تصور میں بھی میں نے کبھی ایسا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ وہ چہرہ نہ صرف خوبصورتی کا پیکر تھا بلکہ اس میں ایک ایسی گہرائی، ایسی سنجیدگی، ایسی تمکنت تھی جو کسی عام انسان میں ہونا ممکن ہی نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، گہری، پراسرار اور سوالیہ نگاہیں، جن میں مجھے ایک ہلکی سی ناراضی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو، جیسے میری موجودگی اسے ناپسند ہو، جیسے میں نے کوئی حد پار کر دی ہو۔ میں اس کی نظروں کی شدت سے گھبرا گئی، ایک دم سے میرا وجود کانپنے لگا، میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے اور میں لرزتے ہوئے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، یہاں سے نکل جانا، فوراً، ابھی اسی وقت۔ لیکن جیسے میں باہر جانے کے لیے مڑی، اچانک اس کی گرجدار آواز مسجد کی خاموش فضاؤں میں گونج اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز اتنی بھاری، اتنی بلند اور اثر انگیز تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ آواز صرف سننے کے لیے نہ تھی، اس میں ایک حکم تھا، ایک اختیار، ایک اثر جو میرے دل و دماغ دونوں پر چھا گیا۔ میں سہم کر، ہڑبڑا کر وہیں بیٹھ گئی، جیسے کسی استاد کے سامنے شرمندہ شاگرد، یا جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کوئی نادم گناہگار۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال، ایک طلب اور ایک ناقابل تفسیر اسرار چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے کو، میرے وجود کو، میری کیفیت کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، جیسے وہ جاننا چاہ رہا ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر وہ ممبر سے اترا، اس کے قدم نہایت پرسکون تھے، لیکن ان میں ایک ایسی طاقت تھی کہ مسجد کی فضا تھم سی گئی تھی۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایک ایسی پرسکون، ناپ تولی ہوئی لیکن گہری موجودگی کے ساتھ، جیسے اس کی ذات خود کسی راز کا دروازہ ہو۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، اس کی آواز پہلے کی نسبت نرم تھی، لیکن اب بھی اس میں ایک دبدبا اور گہرائی موجود تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو اور کیا لینے؟ مجھے بتاؤ، کس مقصد سے یہاں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں وہی بے نیازی تھی جو کسی محافظ کی ہو سکتی ہے، یا کسی ایسے رہنما کی جو نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں کوئی اجنبی یوں بلا وجہ قدم رکھے۔ اس کے الفاظ میرے اندر گونج رہے تھے اور میں بری طرح گھبرا چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کسی خطرناک غلطی کا الزام دے رہا ہو، یا شاید یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ میں کسی سازش کے تحت یہاں آئی ہوں۔ میں فوراً کانپتے لبوں سے بول پڑی،
नहीं नहीं, मैं किसी मकसद से यहाँ नहीं आई, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। मेरी आवाज कपकपा रही थी और आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थीं। वो मेरी बात निहायत सुकून और खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे वो मेरे अंदर छुपी कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने सर थोड़ा सा झुकाकर कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि कोई भी आम लड़की या आम इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। ये जगह आम नहीं है, ये मस्जिद आम नहीं है, और ये जंगल जिसमें तुमने पनाह ली है ये भी आम नहीं। तुम यहाँ तक आई हो तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। मुझे बताओ, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? अब वो सिर्फ सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे अपनी हकीकत, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी कहानी बयान करने पर मजबूर कर रहा था। जैसे उसके अल्फाज मेरे अंदर घुस रहे थे और मेरे छुपे हुए राजों को खींचकर बाहर निकालना चाहते थे। मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। बताऊं या ना बताऊं, सच बोलूं या खामोश रहूं, एतमाद करूं या भाग जाऊं। उसकी आंखें मुसलसल मुझ पर मरकूज थीं और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इंसानों के रूप में जमीन पर आता हो, लेकिन असल में किसी और जहान से ताल्लुक रखता हो। मैंने सर झुका लिया। मेरी आवाज कपकपा रही थी। दिल जैसे किसी खाली कुएं में गूंजने लगा था और होंठों पर बोझिल अल्फाज जमा थे जो अपनी जगह से हिलने को तैयार न थे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं बोली, मेरा नाम नूर बानो है। ये कहने के साथ ही जैसे मेरे सीने पर रखा हुआ एक पत्थर जरा सा सिरक गया हो। मेरा ताल्लुक एक नहायत गरीब घराने से था, वो गुर्बत जिसमें जिंदगी सिर्फ दिन और रात की गिनती में गुजर जाती है। खुशियों के ख्वाब देखने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरा बाप एक मजदूर था जो दिन भर ईंटें उठाता, मजदूरी करता और शाम को थके हारे कदमों के साथ घर लौटता था। उसके जिस्म से पसीने की बू और गुर्बत की गर्द लिपटी होती थी। हम 7 बहन भाई थे और मैं तीसरी औलाद थी। न सबसे बड़ी की जिम्मेदारी संभालती, न सबसे छोटी की लाड उठाती। बस दरमियान में ऐसी फंसी हुई थी जैसे जिंदगी के 2 किनारे मुझ पर बंद हो चुके हों। मैंने एक लम्हे को रुक कर आंखें बंद की, जैसे माजी के अंधेरे गार से निकलने के लिए रोशनी की एक किरण ढूंढ रही हूँ। फिर बोली, घर की हालत ऐसी थी कि सेहन में बारिश का पानी जमा हो जाए तो अम्मा रात भर छत से टपकते पानी के नीचे लोटे रखती रहती। अम्मा भी लोगों के घरों में काम काज करके थोड़ी बहुत रोटी कमा लेती थी, लेकिन वो रोटी इतनी बेजायका लगती जैसे जिस्म का ईंधन है, जायके की चीज नहीं। हमारी जिंदगी में कोई रंग, कोई खुशबू, कोई खुशी नहीं थी। बस दिन निकलता था, सूरज चढ़ता था और फिर शाम हो जाती थी। मेरी 2 बड़ी बहनें घर बैठकर सिलाई करती थीं। वो अपने सब्र पर नाज करती थीं, जैसे दुनिया की सबसे मुहज़्ज़ब औरतें हों। उनकी उंगलियों में सुइयां चुभती थीं, लेकिन लबों पर कोई शिकवा न होता। उन्हें अपने मामूल से कोई शिकायत न थी, मगर मैं उन सब से मुख्तलिफ थी। मुझे सिलाई, कढ़ाई, चौकी, धुलाई सबसे नफरत थी। मुझे अपना दिल किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह लगता था जो आसमान की वसअतें देखकर तड़पता है। मैं इस जिंदगी से, उस गुर्बत से, उस सन्नाटे से, उस सादगी से तंग आ चुकी थी। मैं तरस तरस कर, मांग मांग कर, देख देख कर जी रही थी। हर चीज किसी और की थी और सिर्फ महरूमी मेरी अपनी। फिर मेरे लहजे में एक धीमी लर्जिश उभरी और फिर एक दिन जैसे मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं छत पर खड़ी थी, वही छत जहां से आसमान नजर आता था, लेकिन वो आसमान कभी भी मेरे लिए खुला न हुआ था। उस दिन मेरी निगाह सामने वाले घर की छत पर गई। वो एक आलीशान बंगला था, सफेद संगे मरमर से बना हुआ, जैसे दुनिया के गरीबों को जलाने के लिए बनाया गया हो। वहां एक नौजवान खड़ा था, सफेद शर्ट पहने, ऊंची कामत, तेज निगाहें और ऐसा हसीन चेहरा जैसे किसी अफसाने का शहजादा हो। मैं पहले ही निगाह में खो गई। उसकी दौलत, उसकी शान, उसकी चमकती हुई शख्सियत ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि मैं सब कुछ भूल गई, अपनी हैसियत, अपनी गुर्बत, अपनी हकीकत। जल्दी हमारे दरमियान कुछ फासले खत्म होने लगे। मैं चुपके चुपके उससे बातें करने लगी। शायद कुदरत ने मुझे भी थोड़ी सी खूबसूरती दे दी थी, ऐसी खूबसूरती जो मेरे घर में बाकी किसी को नसीब न थी।
मेरे गोरे रंग, तीखे नकोश, बड़ी बड़ी आंखें और घने बाल मेरे वजूद का वो जेवर थे जिन पर मैं खुद भी हैरान होती थी कि कैसे इस मिट्टी से मैं ऐसे खिल उठी थी। इसीलिए शायद वो नौजवान थे मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। हम छुप छुप कर मिलने लगे। मेरी हर रात अब एक नए ख्वाब के साथ जुड़ने लगी थी। मैं समझने लगी थी कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं उस बंगले की छत पर रहूंगी। अब मैं भी वो सब कुछ पालूंगी जो हमेशा सिर्फ तस्वुर में था। मैंने गहरी सांस ली, जैसे दिल की सुलगते राख में हाथ डालकर कुछ और कहने की कोशिश की हो। फिर एक दिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया, तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ या अपने घर वालों को भेजो। मुझे अब छुपकर जीने से नफरत है। मुझे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा मुमकिन नहीं नूर बानो, मेरे घर वाले कभी किसी गरीब लड़की को बहू नहीं बनाएंगे। उसका ये जवाब मेरे लिए जैसे किसी तमांचे से कम न था। मेरी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब, सारी बातें एकदम से बिखर गईं। मैं जैसे टूट कर रह गई। फिर मेरी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे दिल किसी चट्टान से टकरा कर बिखर चुका हो। अभी मैं उस सदमे से संभली भी न थी कि अब्बा ने एक दिन मेरे सामने आकर एक और कयामत तोड़ दी। कहने लगा, नूर बानो, मैंने तेरी शादी तय कर दी है गुलाम फरीद से। मैं जैसे सुनकर पत्थर की हो गई। गुलाम फरीद वो अब्बा का दोस्त था, एक उम्र सीधा, बदनाम, अयाश और जालिम आदमी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और अब वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मैं चीखी, चिल्लाई, कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मगर अब्बा वो जैसे मेरी कोई फरियाद सुनने को तैयार न थे। अब्बा की आंखों में एक और ही जहान बसा हुआ था। कहने लगा, वो तेरी खूबसूरती की वजह से तेरा रिश्ता लेकर आया है। मैंने तो कहा था कि बड़ी दोनों में से किसी का रिश्ता ले लो, लेकिन वो कहने लगा कि मुझे नूर बानो चाहिए, तेरी सबसे खूबसूरत बेटी। ये जुमला मेरे अंदर जहर की तरह उतरा। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मेरा वजूद सिर्फ एक चेहरे तक महदूद हो चुका है, एक ऐसी खूबसूरती जिसने मुझे बद्दुआ बनकर आ घेरा। मैंने सिसकते लहजे में सर झुकाए अपनी कहानी सुनाना जारी रखी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास अपना दुख सुनाने के सिवा और कोई चारा न था। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही थी, वैसे वैसे दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था और रूह जैसे किसी एतराफ की तलाश में थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, बात सिर्फ रिश्ते की नहीं थी, बात इज्जत, खुददारी, ख्वाब और बर्बाद होते बचपन की थी। बात उस तल्ख फैसले की थी जिसने मेरी तकदीर को चीर कर रख दिया। फिर एक लम्हे को रुकी, सांस खींची और लबों से जहर की तरह बहते अल्फाज जारी किए। अब्बा ने कहा था कि उसका 1 लाख रुपया देना है गुलाम फरीद को। वही गुलाम फरीद जिसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में नफरत, कराहियत और खौफ एक साथ उमड़ आता था। मैंने थकी, शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, अब्बा कह रहा था कि अगर मैंने तेरा निकाह गुलाम फरीद से कर दिया तो वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। वो मेरी खूबसूरती खरीदने पर तैयार बैठा था और मेरे बाप ने उसे बेचने का सौदा भी तय कर लिया था। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा, दिल जैसे भांबड़ बन गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे वजूद पर नफरत की लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बाप सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी को एक बूढ़े, बदकिरदार, अयाश मर्द के हाथ बेच सकता है। क्या मेरी कोई मर्जी, कोई ख्वाब, कोई आवाज, कोई इंसानियत नहीं थी? क्या मैं सिर्फ एक जिस्म थी? गुस्सा इतना शदीद था कि मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को इत्तला दिए एक बड़ा कदम उठा लिया। मैं भाग निकली अपने घर से, अपनी गली से, अपनी दुनिया से। मैं वो सब पीछे छोड़कर चली गई जिन्होंने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया था। मेरी मंजिल क्या थी, कहाँ जाना था, ये मैं खुद नहीं जानती थी। बस दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, बाहर वही नौजवान, वही फरेबज़दा ख्वाब, वही खुशनुमा झूठ जिसने मुझे इस हाल में धकेला। मैं उम्मीद लेकर बाबर के पास चली गई थी, इस ख्याल के साथ कि शायद वो मुझे कबूल कर लेगा, शायद उसके अंदर वो इंसानियत हो जिसका मैं तसव्वुर करती थी। बाबर मुझे अपने दरवाजे पर देखकर घबरा गया। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। वो अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली दूसरे शहर में थी। वो यहाँ सिर्फ तालीम के गर्ज से रिहाइश पजीर था और उसके फ्लैट में बस उसकी तन्हाई, उसकी किताबें और शायद उसकी नजरों का फरेब बसता था। मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं चाहती थी कि वो मुझे पनाह दे,
कम से कम इतना सहारा कि मैं संभल सकूं। मगर उसकी आंखों में मुझे खौफ भी नजर आया और एक अनजाना सा बदलाव भी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैं अकेला रहता हूं। अगर किसी को पता चला तो मसला बन जाएगा। उसके लहजे में नरमी कम, मजबूरी ज्यादा थी और मैं उस वक्त किसी भी नरमी को सहारा समझने को तैयार थी। वो बोला, चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले चलता हूँ, वहां तुम कुछ दिन रह लेना, बाद में कोई और इंतजाम कर लेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खामोशी से रजामंद हो गई क्योंकि मेरे पास इनकार का इख्तियार ही कहाँ बचा था। मैं वो लड़की थी जिसे उसका बाप बेच चुका था, जिसका ख्वाब बिखर चुका था और जिसके कदमों तले जमीन नहीं बल्कि दलदल थी। लेकिन फिर रास्ते में मुझे उसके इरादे भांपने लगे। उसकी नजरों में एक ऐसी हवस झलकने लगी थी जिसे मैं पहले कभी समझ ना सकी थी। वो जो कभी चुप रहता था अब गैर जरूरी बातें कर रहा था, मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अमानत नहीं बल्कि शिकार हूं। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ उभरा। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही थी कि ये लड़का अब वो बाबर नहीं रहा जिस पर मैंने कभी एतबार किया था। उसकी मुस्कुराहट में वो जहर शामिल हो चुका था जिससे मेरी इज्जत तबाह हो सकती थी। जब हम उसके दोस्त के फ्लैट के करीब पहुंचे तो उसकी बातों का अंदाज और भी वाज़ेह होने लगा। वो मुझे बार बार कह रहा था कि फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा। मैं और मेरे 2-3 दोस्त तुम्हारे साथ बैठकर कुछ देर बात करेंगे। मैं चौंक गई। दोस्त? मुझे तो लगा था कि वो मुझे तन्हा कहीं रखेगा ताकि मैं खुद को संभाल सकूं, मगर यहाँ तो कुछ और ही मंजर तैयार किया जा रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है जो मुझे किसी भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल कांपने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन शायद मेरे रब ने मेरी बेबसी पर रहम किया। मुझे एक लम्हे का मौका मिला और मैंने अक्ल और होशियारी से काम लेते हुए किसी बहाने से बाबर को चकमा दे दिया। मैंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और जैसे वो गाफिल हुआ मैं फ्लैट के करीब से एक तरफ भाग गई। मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं थी लेकिन मेरी नीयत में वो आग थी जो मेरे वजूद को बचाना चाहती थी। मैं दीवानावार गलियों में दौड़ती रही, सांस उखड़ती रही, लेकिन मैं रुकी नहीं। मुझे रुकना नहीं था क्योंकि रुकने का मतलब था बर्बादी। इस तरह मैं भागकर इस मस्जिद में आ गई, वही मस्जिद जिसे मैंने रोशनी की एक आखिरी किरण समझा। अब न मेरा कोई घर था, न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। मैं न अपने माँ बाप के सामने वापस जा सकती थी, न किसी अजीज के दर पर दस्तक दे सकती थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बाबर जैसा लड़का जिस पर मैंने आंखें बंद करके एतबार किया, वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा बना चुका था। मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया और जिसे मैंने पनाह समझा वो मुझे तबाह करने पर तुला था। इसी मजबूरी, इसी खौफ, इसी बेबसी और इसी बर्बादी की कैफियत में मैं इस मस्जिद में आकर बैठ गई। ये जगह मुझे खुदा का आखिरी सहारा लगी क्योंकि जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं तो सिर्फ खुदा ही बचता है। मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यहाँ रब की हिफाजत है। यहाँ शायद मुझे वो सुकून मिल जाए जिसकी मुझे शिद्दत से तलाश थी। इसलिए मैं इस मस्जिद के कोने में दुबक कर बैठ गई। शायद रब मुझ पर रहम करे, शायद मुझे कोई नया रास्ता दिखा दे, शायद मैं फिर से जी सकूं। वो नौजवान गौर से मेरी कहानी सुन रहा था, फिर मुझे देखते हुए कहने लगा, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था। अब तुम यहाँ आ गई हो, यहाँ से बचकर जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जैसे ही सुबह का उजाला फैलेगा ये मस्जिद तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएगी क्योंकि ये जगह बहुत भारी है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। ये सुनते ही मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं एकदम से ही उठ खड़ी हुई थी। मुझे यूं घबराते हुए देखकर वो कहने लगा, अच्छा डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, मैं उन्हें समझाऊंगा और कहूंगा कि वो तुम्हें कुछ न कहें। ये सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया और उसे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मुझे घर से निकले हुए 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन बाद कोई भी किसी लड़की को कबूल नहीं करता। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरी बात सुनकर तुम्हारे माँ बाप यकीन कर लेंगे, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उनका कद लंबा
वो सच में एक नौरानी चेहरे वाला एक खूबसूरत नौजवान था। मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर मैंने बाबर की शक्ल, उसकी खूबसूरती देखकर उसे रिश्ता कायम करने का फैसला क्यों किया। मैं तो पहले ही एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, ऊपर से 3 दिन से घर से गायब थी। ये तो शुक्र था कि मेरी इज्जत महफूज रही, वरना मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। अब मुझे छोड़ने मेरे घर जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो मेरे हक में मेरे माँ बाप के सामने गवाही देगा। फिर आधी रात को उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा अब्बा ने खोला था। अब्बा ने मुझे देखा तो गुस्से से मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही उस नौजवान ने हाथ उठाकर अब्बा को रोक दिया और कहने लगा, ये मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना, आप इसे कुछ मत कहना। ये कहने के साथ ही उसने अब्बा के हाथ में एक चीज दी थी, जिसे देखकर अब्बा की आंखें हैरत से फट पड़ी, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देख पाई। फिर अब्बा बिल्कुल खामोश हो गया। उसने मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुझे अब्बा के हवाले करके वो वापस पलट गया, जबकि मैं देर तक उसके वजूद को देखती रही, जो दूर अंधेरी गली में जाकर गायब हो गया था। अब अब्बा मुझे अंदर आने का कह रहा था, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी, डर रही थी। अब्बा जैसे मुझे अंदर लेकर गया, अम्मा की नजर मुझ पर पड़ गई और दोनों बड़ी बहनें भी मुझे गजबनाक निगाहों से घूर रही थीं। लेकिन अब्बा ने उन सबको मना कर दिया और कहने लगा, इसे कुछ मत कहना, बस जो इसे घर लेकर आया है उसने मुझे एक ऐसी चीज दी है जिसके बाद मुझे लगता है कि हम सबकी किस्मत बदलने वाली है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं तजस्सुस से अब्बा से कहने लगी, अब्बा मुझे दिखाओ ना, क्या चीज दी है उसने। ये सुनकर अब्बा कहने लगा, अच्छा वही तो तुम्हारा आशिक है जिसके साथ तुम आई हो, क्या तुम नहीं जानती कि उसने मुझे क्या चीज दी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अब्बा को मालूम ही नहीं था कि मैं उसकी वजह से घर से नहीं भाग गई थी, बल्कि मैं तो बाबर की वजह से भागी थी, जो इस मोहल्ले में रहता था, जबकि वो नौजवान तो बहुत नेक था जो मुझे उस मस्जिद में मिला था। उसके चेहरे से तो नूर टपकता था। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोश रही थी, लेकिन फिर अगले दिन जो हुआ था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब अब्बा खुशी खुशी घर आया, अब्बा के पास बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैं हैरान थी कि अब्बा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो अब्बा के कान में सरगोशी कर रहा था। अम्मा भी बहुत खुश लग रही थी, ऐसे लग रहा था हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। फिर अम्मा कहने लगी, बस मैं अब दोनों बड़ी बेटियों पर भी रुखसती कर दूंगी। पहले तो मुझे नूर बानो पर गुस्सा था, लेकिन जिस तरह उसका शौहर हमारी मदद कर रहा है, अब मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मेरा शौहर कौन है, ये आप क्या कह रही हैं। अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी, कहने लगी, क्या तुझे नहीं मालूम, क्यों मुझे पागल बना रही है। जिसके साथ तू भागी थी वो तेरा शौहर है ना, उसने तेरे बाप को कहा था कि नूर बानो मेरी अमानत है, अब हमें पागल समझती है। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। अम्मा अब्बा न जाने क्या समझ रहे थे, लेकिन शायद इसी में मेरी भलाई थी। फिर मुझे याद आया, उस नौजवान ने मुझे कहा था कि वो मेरे माँ बाप से कुछ ऐसा कहेगा जिसकी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे और अपने घर में जगह दे देंगे। शायद उसने कोई झूठ बोला है अब्बा से, इसी वजह से अम्मा अब्बा मुझे कुछ नहीं कह रहे, बल्कि पहले से भी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आखिर अब्बा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। मैं खामोश थी। मैं अम्मा को कैसे बताती कि जिस नौजवान को वो मेरा शौहर कह रही हैं, उसका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बस मैं खामोशी से घर में होने वाले उन हालात को देखे जा रही थी। अचानक से ही घर के हालात बदल गए थे। फिर दूसरे दिन जब अब्बा और अम्मा ने सामान समेटना शुरू किया, सारे बहन भाई मदद करवा रहे थे और मैं खामोशी से दीवार के साथ लगी ये मनाजर देख रही थी। फिर अब्बा कहने लगा, नूर बानो तू भी जल्दी जल्दी हमारी मदद करवा, अब हम बहुत बड़े घर में जा रहे हैं, तेरा अब्बा बहुत अमीर हो गया है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई। फिर अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसका शौहर बहुत ही अच्छा है, इसने सिर्फ नूर बानो की नहीं बल्कि हमारी सबकी किस्मत बदल दी है। पहले तो मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब गुस्सा नहीं है, जो भी तूने फैसला किया बहुत अच्छा किया। अम्मा अब्बा जाने क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि वो झूठ या सच जो भी समझ रहे थे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था। फिर सारा सामान लेकर हम एक दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल एक बंगले की तरह। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन अब्बा कहने लगा, नूरबानो, तेरा शौहर तुझसे मिलने नहीं आया, आखिर वो तुझे रुखसत करके कब लेकर जाएगा? मैंने सर पकड़ लिया था। मैं जल्दी से घबराकर झूठ बोलते हुए अब्बा से कहने लगी, अब्बा पता नहीं, इतने दिन से तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। अब्बा कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है वो तुझे लेने जरूर आएगा। उसने मुझे कहा था कि नूरबानो मेरी अमानत है। अब मैं खामोश थी, जिसका नाम भी मैं नहीं जानती थी। अम्मा अब्बा उसे मेरे शौहर समझ रहे थे। फिर अम्मा अब्बा ने बड़ी दोनों बहनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि हालात अच्छे होने के बाद उनके रिश्ते बहुत जल्दी आ गए थे। उनके रिश्ते अच्छे घराने में तय हो गए थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। फिर एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने उसी खूबसूरत नौरानी चेहरे वाले नौजवान का चेहरा आया। मेरे दिल ने फैसला किया कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए? वो मुझे उसी मस्जिद में जरूर मिलेगा। मैं उस मस्जिद में जाने का सोच रही थी, लेकिन एक बार फिर से मुझे रात के अंधेरे में घर से निकलना पड़ेगा। अब तो अम्मा अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक हो गया है। मुझे वहां जाने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं उसका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसने ऐसी जादू की क्या छड़ी घुमाई कि मेरी किस्मत ही बदल गई, और उसने मेरे अम्मा अब्बा से क्या कहा था। ये सवाल मैं उससे पूछना जरूर चाहती थी। फिर अगले दिन अम्मा और बड़ी बहनें शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गईं। वो मार्केट चली गई थी। हम बहुत बड़े शहर में आए थे, जहां पर रात गए तक बाजार खुले रहते थे। अब्बा ने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया था और दोनों छोटे भाई अब्बा की मदद करवाते थे। फिर मैंने देखा कि रात के 9 बज रहे हैं और घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चुपके से घर से निकल पड़ी। मेरा रुख उसी तरफ था, उस रास्ते को मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर मैं जैसे ही सड़क पर आई, मुझे एक रिक्शे वाला नजर आया। मैं उस रिक्शे में बैठकर उस बेयाबान सुनसान जंगल में आ गई थी। मुझे उस रास्ते पर बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी। रिक्शे वाले ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था कि ये लड़की इस वीरान रास्ते में क्यों उतरी है, लेकिन मैं जानती थी कि इसी तरह वो मस्जिद थी जो मुझे उस रात के अंधेरे में नजर आई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। आज से पहले मैंने कभी अपने दिल की इस कैफियत को महसूस नहीं किया था। मैं उस नौरानी चेहरे वाले नौजवान से मिलने के लिए बेताब थी। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसीलिए तेज तेज कदमों से चलते हुए मैं बहुत आगे आ गई थी। मुझे किसी की फिक्र नहीं थी। मैं मुसलसल चलते जा रही थी, लेकिन मुझे वो मस्जिद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब भी अचानक मुझे अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई। मैं उस सरसराहट को सुनकर बहुत घबरा गई थी। जैसे ही पलटी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पीछे एक लाल आंखों वाला उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था, जो मुझे गलीज नजरों से देख रहा था। फिर वो कहने लगा, अरे आज तो माल चलकर खुद मेरे पास आया है। वाह वाह, मेरे तो ऐश हो गए। ये कहते ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एकदम से ही उसके वजूद को धक्का दिया और पागलों की तरह भागने लगी। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मैं भागते भागते बहुत आगे आ गई थी। तभी मैंने वो मस्जिद दूर से चमकते हुए देखी तो मेरी जान में जान आई। मैं जानती थी कि उस मस्जिद में जाकर मेरी इज्जत महफूज हो जाएगी। मैं भागती हुई उस मस्जिद के अंदर आ गई थी। एक बार फिर से अपनी नादानी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई थी और खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शुक्र था कि मेरी इज्जत महफूज रही। मैं बेख्तियार उस मस्जिद में आकर सजदे में गिर गई, जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। फिर वही अजीब सी खुशबू और सुकून मुझे यहाँ आकर महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं घुटनों में सर झुकाकर उस मस्जिद में बैठी, अचानक मुझे अपने पास उसी की खुशबू महसूस होने लगी, जिससे मिलने के लिए मैं यहाँ तक पहुंची थी। जैसे मैंने अपना चेहरा उठाया, वो मेरे सामने बैठा था, लेकिन आज उसकी नजरों में मेरे लिए गुस्सा था। वो मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था नूरबानो, दोबारा ऐसे गलती ना करना। फिर तुम अकेली घर से क्यों निकली? देखा, तुम्हारी इज्जत आज फिर खतरे में थी। और शाह उस्मान के दिल में जो लड़की बस जाए, वो कभी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गई। मैं जल्दी से कहने लगी,
मैं तो तुमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आई थी। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, उन पर मेहरबानी करता हूँ जो मेरे दिल में बस जाती है। तुम भी उनमें से एक हो, मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं कहने लगी, क्या आपका नाम उस्मान है? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं शाह उस्मान हूँ, लेकिन तुम मेरी सच्चाई नहीं जानती कि मेरी सच्चाई क्या है। जब जान गई तो कभी मुझसे मिलने यहाँ नहीं आओगी और दोबारा यहाँ कभी मत आना, क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, किसी और को नहीं। उसकी बातें उलझा देने वाली थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से कहने लगी, लेकिन तुमने अब्बा को कहा कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ। अब अब्बा मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे लेने कब आओगे? तुमने उनसे ये क्यों कहा कि तुमने मुझसे निकाह कर लिया है? मैंने सच्चाई उसके सामने रख दी थी। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। जब तो तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं दिन रात जागता रहता हूँ। जब तुम इस तरफ आ रही थी तो मेरे दिल ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मुलाकात करने आ रही हो। मैंने तो उस आदमी को डराकर दूर भगा दिया। तुम्हारे नजदीक कोई भी आएगा, मैं उसे ऐसे ही दूर भगा दूंगा। कोई तुम्हें इंसान छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि तुम सिर्फ शाह उस्मान की हो। ये सुनकर अचानक ही मेरा दिल झूमने लगा। मैं कहने लगी कि तुमने मेरे अम्मा अब्बा पर क्या जादू किया? वो तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। तुम उनसे मुलाकात करने कब आओगे? ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, यही तो मजबूरी है, मैं उनसे मुलाकात करने नहीं आ सकता। बस तुम यह हकीकत जान लो, आज के बाद मुझसे मिलने कभी ना आना। जब तुम्हारा दिल चाहेगा मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ, अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि सुबह का उजाला फैलने वाला है और यह मस्जिद गायब हो जाएगी। अब मेरा दिल बुरी तरह ढकने लगा था। वो बड़ा ही अजीब लग रहा था। बिल्कुल सफेद चेहरा, सफेद कपड़े, ऊपर से लंबी सी सफेद चादर, हर जगह सफेदी फैली हुई थी। नूर ही नूर टपक रहा था उस मस्जिद के अंदर, जैसे रोशनी से बिखरी हुई थी। फिर मैं एकदम से ही उठ खड़ी हुई। मैं कहने लगी, आज फिर मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। तुम्हारे होते हुए मैं खुद को बहुत महफूज समझती हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी अमानत हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो आओ, अगर मेरे होते हुए तुम खुद को महफूज समझती हो, मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे साथ साथ चल रहा था और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फिर वो कहने लगा, दोबारा कभी ऐसी नादानी न करना और कभी किसी इंसान के इश्क में गिरफ्तार न होना, क्योंकि इंसान का इश्क हमेशा झूठा, मकरो फरेब और एक धोखा होता है। इसलिए खुद को उन चीजों से पाक कर लो, क्योंकि तुम शाह उस्मान की हो। ये सुनकर मेरे दिल में बहुत खुशी पैदा हुई थी। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही मुझे लेने के लिए अब्बा अम्मा से बात करेगा। फिर हमेशा की तरह उसने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ा और खुद पलट गया। लेकिन अचानक ही मेरा जहन बुरी तरह चकराने लगा। उसने मुझसे घर का पता तो पूछा ही नहीं था और ना ही मैंने उसे बताया था कि मेरा घर अब दूसरा है, जबकि वो मेरे नए घर के सामने मुझे छोड़कर चला गया था। अब मैं शदीद उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन शायद ये बातें पूछने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से घर के अंदर आ गई। फिर दोनों बहनों की शादी की तैयारियां होने लगी। मेरा दिल मचल रहा था। मैं चाहती थी कि शाह उस्मान भी उस शादी में आए और वो मुझे देखे कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फिर उस दिन मैंने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं उस लिबास में बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। मुझे याद आया कि शाह उस्मान भी हमेशा सफेद रंग का लिबास पहन कर रखता है। आज मैं बड़ी शिद्दत से उसे याद कर रही थी। आज मेहंदी की तकरीब थी, लेकिन तकरीब मुझे फीकी फीकी सी लग रही थी। अम्मा अब्बा ने मेरा उदास चेहरा देख लिया था। फिर अब्बा मुझे कहने लगा, इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारा शौहर नहीं आएगा शादी में? तुम उसके बारे में कुछ बताती भी नहीं हो कि वो कहाँ रहता है, वरना मैं उसे शादी की दावत जरूर देता। मैं उदास होकर कहने लगी, अब्बा अगर उससे आना होगा तो वो जरूर आएगा। ये कहकर मैं ऊपर छत पर चली आई थी, जहां पर कोई भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उदास होकर चांद को देखे जा रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज सुनाई थी, नूर बानो, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं हैरत से पलटी थी। अपने सामने खड़े शाह उस्मान को देखकर मैं बहुत खुश हुई।
फिर मैं जल्दी से कहने लगी, जिस तरह आज मेरी बाजियां रुखसत हो रही हैं, इस तरह तुम मुझे भी लेने आना, मैं रुखसत होकर तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो खुश हो गया और कहने लगा, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन हमारी रुखसती रात के अंधेरे में होगी जिसमें कोई भी शरीक नहीं होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा, ये एक राज की बात है और वो राज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे तुम अपना शौहर बनाने के लिए तैयार हो, जानती भी हो कि वो इंसान नहीं बल्कि शाहिद जिन्नात है। अब मुझे बताओ, ये हकीकत जानने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ जाओगी मेरी दुनिया में? ये सुनते ही मैं हैरत से उसे कहने लगी, यकीनन तुम एक भयानक मजाक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक इंसान हो, वो भी नूरानी चेहरे वाले। तुम्हारी आंखों में नूर है, तुम्हारे वजूद से रोशनी टपकती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, मैं एक नेक जिन्नात हूँ और तुम्हारे सामने एक इंसानी रूप में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने पहली बार किसी लड़की को देखा था। मैं तो अपनी दुनिया में रहता था, हर वक्त खुदा की इबादत करता रहता था, लेकिन तुम खुद चलकर उस मस्जिद में आई थी जो जिन्नात की मस्जिद है, और आधी रात को वहां जिन्नात इबादत करते हैं और मैं वहां का इमाम हूँ। जब तुम मस्जिद में आई थी तो वहां पर सारे जिन्नात मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर नहीं किया, बल्कि मेरे एक इशारे पर वो सब वहां से चले गए थे। सिर्फ मैंने ही तुम्हारे सामने खुद को जाहिर किया था। तुम एक मासूम लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी से शादी करने का ख्वाब भी नहीं देखना। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। फिर वो मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मेरा अंदर तक सब कुछ पड़ रहा हो, और फिर अचानक कहने लगा, अब खामोश क्यों हो? जवाब दो नूरबानो, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे माँ बाप की किस्मत बदली थी। मैंने अपना एक कीमती शाही हार तुम्हारे बाप को दिया था, वही हार जिसकी चमक आम आंखों को खैरा करती, ताकि तुम जो उन दिनों बुरे हालात की शिद्दत और दुनिया की तलखियों से तंग आकर घर से भाग गई थी, दोबारा कभी ऐसा कदम न उठा सको। मैं दम बखुद उसकी बातें सुन रही थी। दिल के अंदर एक खौफ सा सिरायत कर गया था। वो अपनी बात जारी रखते हुए मजीद बोला, मैंने तुम्हारे कदमों में कांटे हटाने के लिए अपने ही खजानों के दरवाजे खोल दिए। तुम्हारे माँ बाप की गुर्बत को खुशहाली में बदला, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे करीब रहो, मेरे दायरे से बाहर न जा सको। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी अमानत हो। ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता, तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं। जैसे ही ये अल्फाज उसके लबों से अदा हुए, एकदम वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं सकते की हालत में खड़ी थी, ना कुछ बोल सकती थी, ना ही कुछ समझने के काबिल रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हाथ लाशऊरी तौर पर दिल पर जा पड़े थे, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ, होश में हूँ और ये सब कुछ ख्वाब नहीं। मेरी आंखें दरवाजे के उस कोने को घूर रही थीं जहां वो आखिरी लम्हे में खड़ा था। मेरी सांसें उखड़ने लगी और मैं एक बुत की तरह साकत खड़ी रही। उसी लम्हे अम्मा की आवाज सुनाई दी जो परेशानी से मेरे करीब आ रही थी। अरे नूर बानो, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज में बेचैनी थी, लेकिन मैं जैसे उनकी बात ही न सुन सकी। बस लब हिले और बेजारी से कहा, अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही। अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मेरे जर्द पड़ते रंग, लरसते लब और आंखों में छुपे खौफ को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो दुनियावी परेशानियों की आदी खातून थी। इन आंखों में छुपी माफूकुल फितरत हकीकत को भला कैसे जान सकती थी। उन्होंने नरमी से समझाया, अरे नीचे तुम्हारा शौहर भी है, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम अपने शौहर के साथ रस्म करने के लिए नीचे आओगी। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। एकदम से मेरे बदन में जैसे आग लग गई हो। मेरे होश उड़ गए, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं कपकपाते कदमों से भागती हुई नीचे पहुंची और जो ही सेहन में पहुंचकर उस इंसान के रूप में खड़े उस शाहिद जिन्नात को देखा, मेरे वजूद ने मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया। मेरी आंखें चुंधिया गईं, दिल की धड़कनें जैसे किसी पहाड़ से टकरा रही थीं और मैं वहीं बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। सब लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। किसी ने पानी के छींटे दिए, किसी ने शोर मचाया, किसी ने दुआ पढ़कर फूंकी और किसी ने डॉक्टरी इलाज के मशवरे दिए। जब होश आया तो बुखार मेरे पूरे जिस्म में ऐसे फैला हुआ था जैसे मेरी हड्डियों को पिघला रहा हो। चेहरा तप रहा था,
आंखें जल रही थी और वजूद पसीने से शराबोर था। अम्मा परेशान थीं, रिश्तेदार हैरत में थे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि मुझे अचानक क्या हो गया। लेकिन उनमें से किसी को ये मालूम न था कि जिसे वो मेरा शौहर समझकर बैठे थे वो इंसान नहीं बल्कि शाहिद जिन्नात था, और इस हकीकत का बोझ सिर्फ मैं उठा रही थी। तन्हा मेरे दिल पर एक भारी चट्टान आ पड़ी थी। मैं चाहती थी कि किसी को बताऊं, अपना दुख किसी से बांटूं, अम्मा से लिपट कर रो दूं, लेकिन जुबान जैसे मफलूज हो गई थी। मेरे लब सिल गए थे और आंखों से बहते आंसू भी आवाज थे। मैं न सिर्फ उस जन्नात की हकीकत से खौफजदा थी बल्कि उसकी ताकत से भी, उसकी मौजूदगी के एहसास से भी, और सबसे बढ़कर उसके दावे से कि मैं सिर्फ उसकी अमानत हूँ। उसने जो कहा था ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी मालूम है। वो बात मेरे दिल में खंजर की तरह चुभी थी। क्या अम्मा अब भी मुझे उसी तरह देखती हैं जैसे पहले? क्या उन्होंने जानबूझकर मेरी जिंदगी उस जन्नात के हवाले की, या वो भी किसी धोखे में थी? सवालों के अंबार थे, लेकिन जवाबात की दुनिया कहीं गुम हो चुकी थी। मेरी आंखें मुसलसल दरवाजे को तक रही थीं। दिल में हर लम्हा यही धड़का लगा रहता कि वो कहीं से अचानक आ जाएगा। अब तो उसकी मौजूदगी को महसूस करना मेरे लिए एक मामूल बन चुका था। कभी हवा में उसकी खुशबू, कभी रात के सन्नाटे में उसकी आहट, और कभी आईने में झलकती वो परछाई। मैं अब तन्हा नहीं थी, और ये तन्हाई ही मेरा सबसे बड़ा खौफ बन गई थी। उस दिन के बाद मेरी हंसी गुम हो गई। दिल किसी अनजाने खौफ में डूब गया, और मैं दुनिया वालों के बीच रहते हुए भी किसी और जहान में जा बसी। मैं अब किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की दुल्हन न थी। मैं अब सिर्फ उस शाहिद जिन्नात की अमानत बन चुकी थी, और उस अमानत का बोझ मेरी रूह तक को लरजा रहा था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।